السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الفیہ کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم الکلام وما یتألف باب شروع کر چکے تھے، ابھی انشاءاللہ اس کو آج انشاءاللہ ختم کریں گے۔ تو اس کے ہم شاعریاں پڑھ کے ابھی ہم کیا بتائے تھے، لاسٹ علامات الفعل کے بارے میں چرچا کیے تھے۔ علامات الاسم بتائے اور اس کے بعد علامات الفعل کا چرچا ہوا تھا، اور انشاءاللہ ابھی علامات الحروف اور فعل ماضی، فعل مضارع اور امر، ان تینوں کو پہچاننے کی علامتیں بھی سمجھائیں گے۔ اوکے، تو سب سے پہلے ایک مرتبہ شاعری کی طرف دھیان کرتے ہیں اور ایک مرتبہ سب لوگ ایک ساتھ مل کے پڑھتے ہیں۔ سواہم الحرف کہلوافی ولم فعل مضارع یلی لم کایشم وماضی الافعال بالتامز وسم بالنون فعل الامر ان امر فہم والامر ان لم یاکل النون محل فیہ هو اسم نحو صحو حیہل۔ آج کی شاعری بہت آسان ہے، اس کا خلاصہ انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگ سمجھ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ایک مرتبہ میں اس کا ڈائریکٹ معنی بتاتا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد اس کے ڈیٹیلز بتا کے پھر ایک مرتبہ معنی پڑھ کے ختم کریں گے۔ تو ہم لوگ چرچا کیے تھے کہ علامات الفعل کیا ہیں، علامات الاسم کیا ہیں۔ تو نیکسٹ، سواہما، ان دونوں کے علاوہ، یعنی علامات الفعل اور علامات الاسم کے علاوہ، فعل کو پہچاننے کی جو علامتیں ہیں اور اسم کو پہچاننے کی جو علامتیں ہیں، ان کے علاوہ کیا ہے، سواہما، ان کے علاوہ، سواہم الحرف، ان کے علاوہ جو ہے اسے حرف کہتے ہیں۔ تو فعل کے علامات اور اسم کو پہچاننے کے علامات، ان کے علاوہ جو بھی ہیں اسے کیا کہتے ہیں، حرف کہتے ہیں۔ سواہم الحرف، جیسے کہ حل، جیسے کہ حل، و فی اور فی، و لم اور لم، جیسے مثال بتائے حل، فی، لم، یہ تین طرح کے۔ فعل مضارع یلی، اور فعل مضارع یلی بعد میں آتا ہے، لم کے بعد میں آتا ہے، کا یشم، جیسے کہ یشم، یعنی لم یشم، فعل مضارع لم کے بعد آتا ہے۔ یہ پہلی شاعری۔ پھر دوسری شاعری میں کیا بتا رہے ہیں، وَمَاضِيَ الْأَفْعَالِ، ماضی فعلوں کو بالتا، تا سے مز، تم لوگ تمیز کرو یعنی پہچانو، مز مطلب میز، تم لوگ پہچانو، کس سے، ماضی افعال کو، بالتا، تا سے۔ وہ کون سا تا ہے انشاءاللہ چرچا کریں گے۔ وسم، اور جانو، وسم یسم سے آیا ہے، سم پہچانو، وسم جانو، بالنون، نون کے ذریعے، فعل الامر، امر فعل کو، ان اگر امر فہم، اس میں امر کا معنی سمجھا جاتا ہو تو امر کو نون سے تم پہچانو۔ صرف کیا بتائے، مضارع کو، مضارع سے پہلے لم آئے گا اور ماضی میں تا آئے گا، اور اگر امر ہو تو اس میں نون آئے گا۔ پھر والامر، اور امر، ان لم یکو، اگر اس میں نہیں ہو، للنونی محل، نون کے لیے کوئی جگہ نہیں ہو، یعنی امر میں اگر نون نہیں آتا ہو تو، فیہی، اس میں یعنی امر میں نہیں آتا تو، ہو اسم، وہ کیا ہے، اسم ہے، نحو، جیسے کہ صح ہے اور حیہل۔ اوکے، یہ تو اس کا ظاہری معنی، اور انشاءاللہ اب اس کا ڈیٹیلز ہم پڑھیں گے تو یہ شاعریاں سمجھ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے بتائے کہ اسم فعل کو پہچاننے کی جو علامتیں ہیں اور اسم کو پہچاننے کی جو علامتیں ہیں، ان کے علاوہ جو بھی ہیں اسے حرف کہتے ہیں۔ تو جس میں فعل کی علامتیں نہیں، اسم کی علامتیں، اسے حرف کہتے ہیں، جیسے کہ حل، فی، لم، یہ تین چیزیں۔ لیکن ان تین چیزوں میں تین الگ الگ باتیں ہیں، تو حرف سب ایک ہی جیسے نہیں ہے۔ کچھ حرف ایسے ہیں جو صرف اسم سے خاص ہیں، کچھ حرف ایسے ہیں جو صرف فعل سے خاص ہیں، کچھ حرف ایسے ہیں جو اسم میں بھی آتے ہیں، فعل میں بھی آتے ہیں، اس لیے یہ تین مثال بتائے۔ تو سب سے پہلے حل ایسا ایک حرف ہے جو اسم میں بھی آتا ہے، فعل میں بھی آتا ہے، جیسے مثال کے طور پر حل زید قائم، کیا زید کھڑا ہے، تو اس میں سے پہلے آیا زید۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے حل قام زید، تو فعل سے پہلے آیا۔ تو حل سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ایسا حرف ہے جو اسم میں بھی آتا ہے، فعل میں بھی آتا ہے، یعنی مشترک ہے۔ اور نیکسٹ فی سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فی ایسا حرف ہے جو صرف اسم سے خاص ہے، یعنی مختص بالاسم، اسم سے خاص ہے، جیسے حل فی الدار زید، حل زید فی الدار، تو فی ہمیشہ اسم سے پہلے ہی آتا ہے، دار اسم ہے، فعل سے پہلے یہ حرف نہیں آتا ہے۔ مطلب ایسے حروف ہیں جو صرف اسم میں خاص ہوتے ہیں، جیسے حروف جر ہے،
इन्ना व अखवात है। ओके, फिर नेक्स्ट लम। लम से क्या बताया कि ऐसा हर्फ है जो सिर्फ फेल में आता है, जैसे लम यलिद वलम युलद। ओके, कुरान में हम पढ़ते हैं ना, लम यलिद वलम युलद। तो ये लम ऐसा एक हर्फ है जो सिर्फ अफ़आल से ख़ास है। तो पहली शायरी में 3 बातें समझना है। ये बातें समझना है कि फ़ेल, अलामत फ़ेल और अलामत इसम के अलावा जो हैं वो सब हुरूफ हैं, और उसके बाद हुरूफ 3 किस्म के हैं। एक ऐसा हुरूफ है जो मुख्तसम बिल इस्म से है, इसम से ख़ास है, जैसे फ़ी, और ऐसे हुरूफ हैं जो सिर्फ फ़ेल से ख़ास हैं, जैसे मुख्तसम बिल फ़ेल है, जैसे लम। फिर ऐसे हुरूफ हैं जो इस्म में भी आते हैं, फ़ेल में भी आते हैं, जैसे हल। ओके, ये हो गया हुरूफ के बारे में। फिर नेक्स्ट फ़ेल मुज़ारी, माजी और अम्र को पहचानने की अलामतें बता रहे। तो फ़ेल मुज़ारी की अलामत यहाँ कैसे बताए? फ़िअलुन मुज़ारियुन, फ़ेल मुज़ारी वो है जो यली लम, जो लम के बाद आता है, जैसे कि का, जैसे कि यशम, यशम्मा, यशम्मु है, शम्मा यशम्मु, सूंघना। तो लम यशम्मा, नहीं सूंघा। तो लम आया फ़ेल मुज़ारी से पहले, इसलिए ये बताना चाहते हैं कि लम जिसमें आता है वो है फ़ेल मुज़ारी। ओके, लम ज़हबा नहीं आएगा, यानी माजी से पहले लम नहीं आएगा, लम इफ़ल नहीं आएगा। तो फ़ेल मुज़ारी वो है जो लम के बाद आता है। तो ये फ़ेल मुज़ारी को पहचानने की अलामत इस तरह बताएं। ओके, लम यलिद वलम युलद, जैसे कि यह फ़ेल मुज़ारी को पहचानने की अलामत, यानी वो लम को कबूल करते हैं, उससे पहले लम आता है। फिर फ़ेल माजी को पहचानने की अलामत क्या बताए? व माजी अल अफ़आल बित्ता, माजी अफ़आल को तुम ता से क्या करो? मिज़, मतलब मय्यिज़, तुम क्या करो? पहचानो। तो ये ता कौन सा है? हम पढ़े थे बिता फ़ालता, यानी कौन सा ता है? एक ताउल फ़ाइल है और एक ताउत तानीस है। ताउल फ़ाइल जैसे फ़अलतु फ़अलना पढ़े थे, फ़अलतु फ़अलना नहीं, फ़अलतु फ़अलती और फ़अलता, ये 3 वाला। फिर ताउत तानीस हम पढ़े थे फ़अलत। ओके, फ़अलत। तो ये ता से तुम माजी अफ़आल को पहचानो। तुम माजी को पहचानने की अलामत क्या? उसमें ता आएगा, यानी ताउल फ़ाइल आएगा या ताउत तानीस आएगा, उसको कहेंगे माजी। फ़ेल मुज़ारी में नहीं आएगा, अम्र में भी नहीं आएगा। इस वजह से माजी समझना हो तो उसमें ताउल फ़ाइल या तो ताउत तानीस आएगा। फिर व माज़ी अल अफ़आल बित्ता, वसिम और वसमा यसिम है, मनी अलामत देना, पहचानना, अलामत दो। फ़ेल अल अम्री, अम्र को बिन्नूनी, नून से। अब फ़ेल अम्र को हम समझने के लिए उसमें नून आएगा, यानी नून तौकीद आएगा उसमें। तो अगर एक फ़ेल अम्र है, उसका माना सबसे पहले इन अम्रुन फ़हीम, अगर उसमें अम्र का माना समझ में आता है, आगे शायरी में बता रहे ना, अगर अम्र का माना उसमें है और उसमें नून दाखिल हो सकता है, यानी नून तौकीद सकीला हो खफीफ़ा हो, उसमें दाखिल हो सकता है, तो उसको क्या कहेंगे? अम्र कहेंगे। क्योंकि फ़ेल मुज़ारी में भी नून तौकीद आएगा, लेकिन उसका माना अम्र का नहीं रहेगा। इस वजह से क्या बताएं, अगर एक ऐसा फ़ेल है जिसमें अम्र का माना है, यानी तलब का माना, अम्र का माना आप लोग सब पढ़ चुके हैं, अम्र फ़ेल मुज़ारी माना, उसका सब माना। तो अम्र का माना है और उसमें नून तौकीद आ सकता है, तो वो अम्र है। जैसे इफ़अलन्ना, इहदरन्ना, इफ़अलन, तो उसमें नून तौकीद आता है। तो वसिम बिन नून, नून से फ़ेल अम्र को तुम पहचानो कि उसमें नून आएगा, इन अम्रुन फ़हीम, अगर उसमें अम्र का माना पाया जाता है। तो मुज़ारी की अलामत यह है कि मुज़ारी लम के बाद आएगा, और माजी को क्या बताए? उसमें ता आएगा, यानी ताउल फ़ाइल या तो ताउत तानीस आएगा। और फ़ेल अम्र वो है अगर उसमें अम्र का माना पाया गया तो उसमें नून तौकीद आने की काबिलियत हो। अगर नून तौकीद नहीं आ सकता है तो वो अम्र नहीं है। फिर आखिरी शेर में क्या है वही बता रहे हैं कि अगर एक फ़ेल, एक लफ्ज़ है, उसमें अम्र का माना पाया जाता है लेकिन उसमें नून तौकीद नहीं आ सकता है, तो वो क्या है? तो वल अम्र, और अम्र, इन लम, अगर नहीं हो, फ़ीही, उसमें, लिन नूनी, नून के लिए महल। अगर एक अम्र है, यानी उसमें अम्र का एक लफ्ज़ है, उसका माना अम्र का माना दे रहा है, लेकिन उसमें नून के लिए महल नहीं, यानी नून नहीं आ सकता है, उसमें नून तौकीद उसमें दाखिल नहीं हो सकता है। फ़ीही, यानी उस लफ्ज़ में नून तौकीद नहीं आ सकते, लेकिन माना अम्र का है, तो हुवस्मुन, वो क्या है? इस्म है, यानी इस्म फ़ेल है वो। हुवस्मुन, वो क्या है? इस्म फ़ेल। इस्म फ़ेल हम लोग पढ़े हैं, यानी लफ्ज़ है वो फ़ेल का माना देता है, देखने में इस्म लगता है लेकिन वो फ़ेल का माना देता है, इस्मुल फ़ेल। तो मुज़ारी का भी हो सकता है, माजी का भी माना दे सकता है, लेकिन यहाँ अम्र का क्यों चर्चा की? क्योंकि अम्र के बारे में हम बता रहे हैं। क्या? अगर एक लफ्ज़ है वो अम्र का माना देता है लेकिन उसमें नून तौकीद नहीं आ सकता है, तो उसको इस्म फ़ेल कहेंगे। फ़ेल अम्र, फ़ेल मुज़ारी नहीं कहेंगे, बल्कि उसको इस्म फ़ेल कहेंगे। ओके, तो जैसे मिसाल के तौर पर सह, सह का माना क्या है? उसकुत, खामोश हो जाओ, सह।
माना देखें तो अम्र का माना है, लेकिन उसमें नून तौकीद नहीं आएगा, सहन्न ऐसा नहीं आएगा, ओके, क्योंकि वो इस्म फ़ेल है, तो उसको फ़ेल अम्र मत कहो, उसको क्या कहो, इस्म फ़ेल कहो। और एक मिसाल दिए हय्या हल, हय्या हल माना अक़बिल, आओ आओ, तो हय्या हल का माना अक़बिल आओ, लेकिन वो अम्र माना देता है, लेकिन उसमें नून तौकीद नहीं आ सकता है, इसलिए उसको अम्र नहीं बल्कि इस्म फ़ेल कहेंगे। तो आज के शायरियों का खुलासा क्या है, सबसे पहले बताया अलामत इस्म, अलामत फ़ेल के अलावा जो है जो चीज़ें हैं उसे हर्फ कहते हैं, और हर्फ में 3 किस्म है, एक मुख्तस बिल इस्म है, और एक मुख्तस बिल फ़ेल है, और एक मुश्तरक है, इस्म में भी आ सकता है फ़ेल में भी आ सकता है। फिर माजी मुजारी अम्र को पहचानने की अलामत बताए, मुदारी बोले तो वो उसके पहले लम आएगा, और माजी बोले तो उसमें ता आएगा, ताउल फ़ाइल या तो ताउ तानिस आएगा, और अम्र बोले तो उसमें अम्र का माना भी होगा और नून तौकीद आएगा। फिर लास्ट में यह बताया कि अगर एक लफ्ज़ है जिसमें अम्र का माना पाया जा रहा है लेकिन नून तौकीद नहीं आ सकता है, तो उसको अम्र मत कहो बल्कि इस्म फ़ेल कहो। तो ये है आज की 3 शायरियों का खुलासा। तो इससे हमारा अल कलाम व मा यतअल्लफ़ु बिही यह चैप्टर भी ख़त्म हो रहा है। तो कोई डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इतना कहकर आज की हम क्लास ख़त्म करते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।